Good afternoon, everyone. So, in the previous classes, we have studied Unit 1, Unit 2 and Unit 3. It was basically about the हमारा national economic, national government, like in nationally government कैसे काम करती है, companies कैसे काम करती हैं. Now we will move to the global business environment. How globally our businesses work, how internationally government impact on the companies. So first we will study about the global business environment. We will study in this unit about WTO, like World Trade Organization, about the government participation in various institutions or various associations, for example like BRICS, BIMSTEC और इन आसियान कंट्रीज़ में लाइक हमारी गवर्नमेंट का, हमारी इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, हाउ आर गवर्नमेंट वर्क्स इन दीज इंस्टीट्यूशंस. So first we will study about the World Trade Organization. That is very important for the businesses. Like in previous classes also I have told you कि जितना भी foreign trade होता है, it is greatly impacted by the World Trade Organization. इनके जो भी like rules and regulations जितनी भी field हैं, that is given by the World Trade Organization. So वो आज हम लोग start करते हैं. So World Trade Organization. So, World Trade Organization, first of all, what is in World Trade Organization? It is an institution, it is an intergovernmental organization that regulates and facilitates, like it regulates, it is a regulatory body and it facilitates international trade between nations. So, it basically a monitoring, regulatory and a facilitator body between like the international, for the international trade between nations. तो जितनी भी all over the world जो trade होता है, foreign trade होता है, that is basically covered and controlled by the World Trade Organization. So it officially commenced operations on 1st Jan 1995. Like it was formed on 1st Jan 1995 pursuant to the 1994 Marrakesh Agreement. जो agreement हुआ था उसके अंदर WTO का commencement हुआ. Then it replaced the General Agreement on Tariffs and Trade. Like formal हमारे पास GATT था, General Agreement on Tariffs and Trade, that had been established in 1948, जिसको replace किसने किया? WTO ने. The WTO is the world's largest international economic organization with 164 member countries. Like this is an institution which has 164 member countries, state representing over 98% of global trade. Like you can imagine कि पूरे all over the world का 98% global trade WTO की help से facilitate हो रहा है. And global GDP also. Like global GDP and global trade का 98% cover कर रहा है only WTO. So you can say कि पूरे world का trade किसके अंदर, like किसके अंदर controlled है? In WTO. So at present WTO consists of 164 members including European Union and 23 observer governments like Iraq है उसमें, Iran, Bhutan, Libya etc. These are the observer governments. Also, WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. Like most importantly, who makes the rules of trade? So that is WTO, World Trade Organization. So ये इकलौती ऐसी हमारे पास ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड के रूल्स बनाती है, जो कि बाकी लाइक जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके अंदर आती हैं वो कैसे ट्रेड करेंगी, कितना कैसे कैसे चीज़ें होंगी, दैट इज़ ओनली कंट्रोल्ड एंड रूल्ड बाय WTO. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, सो लेट्स see the background for WTO. How WTO commenced? कैसे आया ये? So first of all, अभी हमने पढ़ा कि WTO ने किसको रिप्लेस किया है? GATT को, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. सो पहले हमारे पास GATT था, उसकी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी जिसकी वजह से हमारे पास आज के टाइम पे WTO है.
सो जब इन 1948 जो ये बना था गैट, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि लिमिटेशन थी, लाइक उसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। कौन कौन सी? इट वाज लाइक इसका सिर्फ बेसिक, बहुत बेसिक इसको बनाया था टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, function more as a series of trade negotiations than a full-fledged, like it was not a comprehensive for all world trade. ये सिंपल किसके लिए काम करता था? टैरिफ्स को रिड्यूस करता था, ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड नेगोशिएशंस कैसे होंगे, ये सब, rather than a full-fledged organization. It was not a full-fledged organization जो कि हर एक चीज़ को like manage कर रही है. Then, while it was effective in liberalizing trade in goods, it lacked a comprehensive structure. In GATT, it lacked a comprehensive structure जो कि हमें WTO में देखने को मिलता है. Authority for enforcement, इसके पास authorities भी बहुत कम थी, and clear rules on services. It like GATT के अंदर clear rules for services नहीं थे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी रूल्स अवेलेबल नहीं थे, एंड अदर की एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी कंट्री कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कितना क्या रूल है, देन अदर की एरियाज़ के लिए भी क्या रूल है, ये सब चीज़ें कौन ऑर्गेनाइज करता, उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी. देन वी मूव्ड फॉरवर्ड इन द 1980s, लाइक 1980s में ग्लोबली ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था. वी कैन क्लियरली सो डैट ग्लोबल ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था रैपिडली. न्यू ट्रेड इश्यूज़ वर इवॉल्विंग. उस टाइम पे न्यू ट्रेड इश्यूज़ आ रहे थे, लाइक सर्विसेज के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देयर वर मेनी थिंग्स टू टू लुक एट. तो उस टाइम पे एक जो कि फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था, वो किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाएगा, किन किन चीज़ों के ऊपर रूल्स बना पाएगा. इट वॉज हार्डली टू लुक. दीज एरियाज वर नॉट एडिक्वेटली कवर्ड अंडर दिस अग्रीमेंट, लाइक दिस जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन था. तो हमें किसकी ज़रूरत थी? अ मोर रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमारे पास बना यूरोग्वे राउंड नेगोशिएशंस के अंदर WTO. इट वॉज द मोस्ट एम्बिशियस नेगोशिएशन गैट हिस्ट्री. ऑफकोर्स ये जो मीटिंग हुई थी वो गैट की ही हुई थी. उसके अंदर इट कवर्ड 15 एरियाज़, लाइक दे इंट्रोड्यूस न्यू 15 एरियाज़ कि 15 एरियाज़ को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे. सर्विसेज को इंक्लूड किया गया. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि जितना भी यहाँ पे लैकिंग था वो यहाँ पे कवर किया गया. एंड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज दे इन्वॉल्व. After extensive and complex negotiation lasting nearly 8 years, 123 countries, अब यहाँ से starting है, 123 countries at that time signed the Marrakesh Agreement in April 1994. They signed the agreement for these areas और वहीं पे which led to the establishment of WTO. They named this the organization कि World Trade Organization को हम लोग नाम देंगे, replacing this GATT. Understood? ये किस में हुआ है? यूरोग्वे राउंड नेगोशिएशन के अंदर हुआ है, which was also a part of GATT समिट या GATT का कोई भी एक मीटिंग जो भी लगा लो, उस मीटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें सजेस्ट की गई और प्रॉपरली फॉर्म्ड की गई. और कौन सा अग्रीमेंट था? तो मैराकेश अग्रीमेंट था, जो कि अप्रैल 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ, साइंड हुआ बाय 123 कंट्रीज ओनली. उस एट दैट टाइम ओनली 123 कंट्रीज साइंड, बट लेटर ऑन यू हैव सीन कितनी मेंबर कंट्रीज है. राइट नाउ वी हैव 164 मेंबर कंट्रीज राइट नाउ इन WTO, जो कि लेटर ऑन इंक्रीज होती चली गई. So there are objectives of WTO. What are the objectives of WTO? First, establishing rule of law in international trade. Mainly rules बनाना international trade का. Ensuring free and fair trade. Like free trade भी हो and fair भी हो, किसी भी country के साथ injustice ना हो, unfair way में trade ना हो. Then maintaining transparency and predictability in international trade. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लाइक कोई भी कंट्री जो कि ट्रेड कर रही है, इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट विद द कस्टमर्स, विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. लाइक WTO के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं जो कि फोकस करती है ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का और डेवलपमेंट हो सके. तो WTO हेल्प करता है इस
डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड नेशंस के लिए कंट्रीब्यूट करने में, ठीक है। सो दीज आर दी मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। नाउ देयर आर मेन फंक्शंस ऑफ द WTO। इसके मेन फंक्शंस हमारे क्या हैं? फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर भी वर्ड आता है दैट मीन्स इट मेक्स ड्राफ्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा। हर चीज़ किसको कवर करती है? अग्रीमेंट बनाते हैं किसके ऊपर? इट कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें WTO लाइक अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर करती हैं। सबके ऊपर रूल कौन बना रहा है? WTO बना रही है। देन सर्विंग एज अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। तो जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस होती हैं बिटवीन कंट्रीज, उसका जो एक मिडल पार्ट है, लाइक कॉमन पार्ट कह लो, वो कौन है? WTO है। द WTO होस्ट राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, जिसके अंदर जैसे सपोज दिस इज अ रूम, यहाँ पे WTO इज द फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर 164 मेंबर्स आर देयर। दे विल डिस्कस अबाउट लाइक क्या लाइक होना चाहिए, लाइक रूल कितना बनना चाहिए, क्या रूल आना चाहिए नेक्स्ट टाइम पे। तो हर एक कंट्री, हर एक मेंबर कंट्री अपने कुछ सजेशंस देगी, एडवाइसेस देगी टू द WTO कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। लाइक दे विल नेगोशिएट विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो यहाँ पे प्रॉपर एक मीटिंग होती है, हर साल एक समिट होता है WTO के अंदर, वे मेंबर कंट्रीज डिस्कस एंड अग्री ऑन न्यू ट्रेड रूल्स क्या होनी चाहिए एंड अपडेट एग्जिस्टिंग वंस। इफ देयर इज अ नीड टू अपडेट तो अपडेट होगा, और दे मस्ट डिस्कस एंड अग्री ऑन न्यू ट्रेड रूल्स। लाइक मेजॉरिटी मेंबर्स को वहाँ पे अग्री करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए डिस्कशंस होते हैं। देन देयर इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑल्सो। WTO के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प्स रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, जो कि बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है रिगार्डिंग द ट्रेड, उसको कौन सेटल करेगा? उसके लिए कहाँ तुम लोग जाओगे? तो उसके लिए हमारे पास है WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जिसके अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट आएंगे बिटवीन मेंबर कंट्रीज, इट विल सॉल्व देम यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसेस, जो कि हमारी कंट्री में भी पूरा स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसेस है, उसी से गो थ्रू होके जाना पड़ेगा और उसी से पूरा लाइक प्रॉपर ये रिजॉल्व होगा जो भी डिस्प्यूट आया है। मेकिंग रूलिंग्स दैट कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ऑफ कोर्स अगर तुम इसका पार्ट हो, WTO का पार्ट हो, तो यू मस्ट हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लीगल प्रोसेस। लाइक प्रॉपर कोर्ट में जितनी भी हियरिंग्स होगी उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर तुम्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके कोई भी जो भी डिस्प्यूट आया है वो सॉल्व होगा। देन मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़। अब मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में इंडस्ट्रियल ट्रेड पॉलिसीज़ बताई थी, सब्सिडीज़ कितनी बनानी है, क्या सब्सिडीज़ हैं, क्या टैक्सेस लगे हैं, लाइक गवर्नमेंट ने कितनी सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई हर एक टाइम पे। अब इनको भी तो कोई मॉनिटर कर रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने FDI को कितना लाइसेंस दिया है, 100% है, 75% है। FII के लिए कोई हमने बैरियर तो नहीं लगा दिया? क्या हम किसी कंट्री को बायकॉट तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम कंट्रीज़ के बीच में बायस तो नहीं हो रहे हैं? सो दैट इज़ मॉनिटर्ड बाय WTO। कितनी सब्सिडी प्रोवाइड होंगी, किसी कंट्री के साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है, तुमने अपने पॉलिसीज़ के अंदर किसको फेवर किया है, तुम क्या करना चाहते हो, लाइक व्हाट इज़ योर अप्रोच, दैट इज़ मॉनिटर्ड बाय नन अदर दैन WTO। सो द WTO रिव्यू करता है। अब ये सारी चीज़ें पहले रिव्यू में जाती है, रिव्यू होती है एंड इवेलुएट्स मेंबर कंट्रीज ट्रेड पॉलिसीज़ टू एंश्योर दे अलाइन विद अग्रीड अपॉन ट्रेड रूल्स। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो अग्रीमेंट हुआ है WTO की 164 मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ पे हर एक मेंबर कंट्री ने साइन किया होगा। उस साइन में तुमने क्या बोला था? उस साइन में तुमने बोला होगा ना, यू अग्रीड ना, कि हम लोग हर एक जितनी भी प्रोसेस है, जितने भी रूल्स हैं, उनसे अबाइड करेंगे। और तुमने अगर उसको साइन किया तो तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी, तुम अलग से पॉलिसीज़ नहीं बना सकते फिर, और पॉलिसीज़ में कोई डिफरेंट नहीं कर सकते जो कि WTO से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो। सो अंडरस्टूड। तो ये हमारा WTO क्या काम करता है? मॉनिटर करता है हर एक मेंबर कंट्री की नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़। देन टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। ऑफ कोर्स लाइक मेन जो
इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए WTO क्या कर रहा है। तो वो ये कर रहा है कि वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। द WTO ऑफर्स कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो दैट इज़ ऑल्सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए WTO क्या कर रहा है, तो वो ऑफर करता है कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट या और कुछ लाइक कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना टू दीज कंट्रीज़। यहाँ पे WTO डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये चीज़ कर रहा है। देन मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ WTO? स्ट्रक्चर ऑफ WTO लाइक हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो फर्स्ट जो लाइक हायर अथॉरिटी पे आते हैं, दैट इज़ अ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। लाइक इट इज़ द फाइनल डिसीजन जो लेता है ना ऑफ WTO, वो यही ले रहा है, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। साइन होके किसके साइन जाएंगे? फाइनल डिसीजन किसका होगा? इन्हीं का होगा। देन जनरल काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है? जो कि ड्राफ्ट करते हैं रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल और कुछ न्यू रूल्स बनाने हैं, कुछ अपडेट करने हैं। दैट इज़ डन बाय द जनरल काउंसिल। ये जनरल काउंसिल करता है। इसके अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हमारी डिफरेंटली वर्क करती है एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी हमारी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। सो यू कैन इमेजिन कि ट्रेड पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, लाइक WTO के लिए, कि उसके लिए एक अलग से रिव्यू बॉडी है। एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही हम लोग लाइक रेगुलर डेज पे देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है किसी न किसी कंट्री के बीच में। उसके लिए प्रॉपर तुम्हारे पास मैनेजमेंट है या नहीं है, तो दे हैव। तो जनरल काउंसिल ड्राफ्ट वगैरह ये सब बनाता है। उसके बाद इनका साइन वगैरह हो गया। देन आफ्टर मेकिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, साइन किसके होते हैं? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अगर इन्होंने मना कर दिया, दैट मीन्स नो। इन्होंने हाँ किया, इनका फाइनल डिसीजन ही लास्ट रहेगा। और इसके लोअर पे अगर आ जाएं तो वी हैव गुड्स काउंसिल। अब ये स्पेसिफिक है हमारे काउंसिल। एक गुड्स काउंसिल है, लाइक हमारे पास जो ट्रेड हो रहा है इन डिफरेंट लाइक वैरायटी बहुत है हमारे पास। तो वैरायटी किसकी है? एक तो गुड्स की है, गुड्स की एक अलग से काउंसिल है। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल है हमारे पास, जिसके अंदर सिर्फ IPR के ऊपर हम लोग ध्यान रखते हैं। देन वी हैव सर्विसेज काउंसिल ऑल्सो इन WTO। सो ये 3 मेजर गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर अलग से बॉडी बनाई गई है, जिनके ऊपर अलग से देखा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ मैनेज किया जाता है इन 3 काउंसिल के द्वारा इन WTO। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ WTO, कैसे वो काम करता है। ये जो नीचे लोअर पे दिख रहे हैं तुम लोगों को, यही अपनी जो भी तुम्हें लाइक लिमिटेशंस किसी की नज़र आ रही हैं, तो ये किस तक पहुंचाती है? जनरल काउंसिल तक पहुंचाती है। और यही लोग फिर उसके द्वारा क्या बनाते हैं? अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करते हैं। अंडरस्टूड? देन नाउ इम्पॉर्टेंटली वी हैव principles of World Trade Organization. Now there are some main principles. अब इसके कुछ अलग से प्रिंसिपल हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंदर WTO ये बोलता है कि इफ अ मेंबर कंट्री ग्रांट्स टू अ कंट्री अ स्पेशल फेवर, अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री को स्पेशल फेवर देता है, ठीक है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज कर सकती है, किसी के लिए बायस हो सकती है। तो इफ़ दे आर डूइंग दिस, इफ़ दे आर डूइंग अ स्पेशल फेवर, फॉर एग्जांपल लाइक लोअर कस्टम ड्यूटी प्रोवाइड कर देना उस स्पेसिफिक कंट्री को on any of its product, it must grant the same favor to all the member countries of the WTO. That is the most favored nation principle. कि अगर एक के साथ तुम फेवर दे रहे हो, एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हो, तो वो तुम्हें बाकी सारी कंट्रीज़ को भी देना पड़ेगा वो सेम फेवर। दैट इज़ अ मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल। इसके लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? कंट्रीज़ कैन सेट अप अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि अभी मैं तुम्हें लेटरली बताऊंगी। आसियान में हमारे पास फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वी हैव ब्रिक्स के अंदर है, क्वाड के अंदर भी लाइक हम लोग कर सकते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम लोग कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। फ्री ट्रेड होता है बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में,
तो उसके लिए एक्सेप्शंस लगा दिया गया है कि अगर कुछ एसोसिएशन है आपस में कंट्रीज करना चाहती हैं दे कैन, बट दैट अप्लाइज ओनली टू गुड्स ट्रेडेड विद इन द ग्रुप। अगर वो जो गुड्स है जो ट्रेड हो रहा है वो विद इन द ग्रुप ही हो रहा है, ठीक है, तो ये चलेगा। डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, लाइक फ्री ट्रेड हो रहा है तो हम लोग आपस के गुड्स को बाय एंड सेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग बाकी गुड्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये हमको दिख रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर। देन दे कैन गिव डेवलपिंग कंट्रीज एंड LDCs अ स्पेशल एक्सेस टू देयर मार्केट। अब जो कंट्री है, कोई कंट्री अगर ऐसा है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज और LDC लीस्ट डेवलप कंट्रीज को स्पेशल एक्सेस देना चाहते हैं तो वो भी अलाउ किया जाता है इन WTO। इसको इसके अंदर नहीं रखा जाता, ठीक है, तो वो दे सकते हैं क्योंकि WTO ट्राई करता है कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज एंड LDCs को एक स्पेशल फेवर मिले, लाइक दे पुश फॉर डैट कि इनका भी ग्रोथ हो WTO के अंदर। देन अ कंट्री कैन रेज बैरियर्स अगेंस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, ये अब हमारी कंट्री के लिए आ सकता है। अ कंट्री कैन रेज बैरियर अगेंस्ट प्रोडक्ट दैट आर कंसिडर्ड टू बी ट्रेडेड अनफेयरली फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री। अगर किसी कंट्री को लगता है कि कोई भी गुड ऐसा है जो कि अनफेयर वे में ट्रेड किया जा रहा है विद लाइक स्पेसिफिक कंट्रीज, तो उसको तुम बैरियर लगा सकते हो, उसको तुम बैन कर सकते हो, जैसे कि हमारी कंट्री ने किया था, अगर याद हो तो। हमारी कंट्री ने बहुत सारे गुड्स को बैन भी करा था, याद है, किसी कंट्री के साथ। तो चाइना की बहुत सारे ऐप्स को लाइक गुड्स को भी बैन करा था। तो ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, अगर उनको लगता है कि किया है तो दे कैन, बट उसके लिए प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑब्वियसली इसके अंदर डिबेट चली है WTO के अंदर। चाइना ने बोला कि हमको हमारे साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जबकि मोस्ट फेवर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते बिटवीन कंट्रीज़। बट इंडिया ने अपनी तरफ से आर्गूमेंट दिए कि हमारे ये इस लाइक IPR रूल के अंदर आता है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लाइक प्रॉपर प्रूफ फिर देना पड़ेगा, आर्गूमेंट पूरी रखनी पड़ेगी इफ़ यू आर डूइंग दिस, इफ़ यू आर डूइंग द डिस्क्रिमिनेशन। देन नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशन। नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशन क्या है? It states that imported and locally produced goods in a country should be treated equally once the foreign goods have entered the country. Like अगर कोई बाहर से गुड आ रहा है, you need to treat their goods like foreign goods, किसके साथ? अपने imported and locally produced goods के साथ। You can't be biased with both goods, कि अपने जगह से अगर आ रहा है तुम उसके लिए तो बहुत सपोर्ट कर रहे हो। अगेन इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग जो हमारा लाइक मैंने तुम्हें लेटेस्ट पढ़ाया था लास्ट क्लास में। क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में? सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकली प्रोड्यूस गुड्स को हम लोग पुश कर रहे थे कि हम उसको पुश करेंगे, उनके लिए सपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पे ये प्रिंसिपल हमें क्या बोल रहा है कि लोकली प्रोड्यूस गुड्स और फॉरेन गुड्स के साथ हम इक्वली ट्रीटमेंट करेंगे, हम उनमें बायस नहीं हो सकते। अगेन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तभी मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि ठीक है WTO तो मना करता है, लेकिन हम लोग रूल्स ऐसे ना बनाएं कि हम लोग यहाँ पे दिखे कि हम वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद बोथ गुड्स, ठीक है। तो हमें उनके साथ ऐसा नहीं कि लाइक सब्सिडीज़ कम कर दी, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगा दी, ये हम लोग नहीं कर सकते। लोकली प्रोड्यूस गुड्स को पुश करना है, उनको हमें सपोर्ट करना है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बाहर के गुड्स को के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें माइंड लगाना पड़ेगा कि क्या चीज़ बोली जा रही है और क्या इंडिया कर रही है। बट वो ऐसा नहीं करे कि बिल्कुल दिखाने के लिए देखो कि भाई सेल्फ रिलायंट इंडिया तो हम लोग बाहर के गुड्स को एंटर ही नहीं करने देंगे। नो, you need to be balanced with both. The same should apply to domestic and foreign services, like services के साथ भी है, goods के साथ भी है, तुम किसी के भी साथ bias नहीं हो सकते, you need to treat them equally. Local and foreign trademarks के साथ भी, patents के साथ and copyrights also. तो वही IPR like intellectual property, services and goods, तीनों के साथ कोई भी biasness WTO बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये इसके रूल में लिखा हुआ है। देन अदर प्रिंसिपल्स आर, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फ्री ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस। देयर इज अ फ्री ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स फॉर एनकरेजिंग ट्रेड। WTO का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज द लोअरिंग ट्रेड बैरियर। लाइक WTO पुश करता है कि
अगर हमें वर्ल्ड लाइक ग्लोबल ट्रेड बहुत स्मूथ, बहुत एक्सेसिबल बनाना है हर एक कंट्री के लिए, वी नीड टू लोअर डाउन द ट्रेड बैरियर, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत भारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है, उसको नहीं लगाना, लोअर ट्रेड बैरियर्स रखने जितना तुम लोग रख सकते हो। सो ये एनकरेज करते ग्लोबल ट्रेड को और ज़्यादा, फ्री मार्केट एक्सेस ताकि हर एक कंट्री को मिल सके। सो देयर आर टू मेन कैटेगरीज, जिसके अंदर आता है टैरिफ बैरियर्स है और एक नॉन टैरिफ बैरियर्स है। उसमें भी बिल्कुल अलग अलग देखा जाता है कि इसमें कितने बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स में कितने हैं। देन प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन, फ्री एंड ट्रेड है, फ्री मार्केट एक्सेस है। देन आता है प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए हर एक कंट्री के साथ। सो रूल सच इज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट क्या बोलता है कि फेयर कॉम्पिटिशन हो। अगेन MFN का रूल दोबारा से वो लोग तुम कह सकते हो कि उसको और थोड़ा एनहांस कर रहा है MFN को ही, कि फेयर कंपटीशन हो, फेयर हो, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो फेयर वे में होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। सो फॉर एवरीथिंग लाइक गुड्स, पेटेंट्स एंड सर्विसेज, besides the WTO agreement provide for discouraging unfair competitive practice such as dumping and export subsidies, like export subsidies के अगेंस्ट में है एंड डंपिंग के अगेंस्ट में है। डंपिंग क्या होता है, पता है सबको डंपिंग क्या होता है? नहीं, दैट इज़ डिफरेंट। डंपिंग मीन्स होता है अपने मार्केट में, सपोज अगर हमारी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट है दैट इज़ फॉर 100 रुपीज़, ठीक है, अपनी कंट्री में अगर वो जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फॉर 100 रुपीज़, और हम अगर उसी प्रोडक्ट को बाहर की कंट्रीज़ में, लाइक इन फॉरेन मार्केट, वी आर सेलिंग इट फॉर 50 रुपीज़, तो इतने कम मार्जिन में अगर हम अपने ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं इन अनदर कंट्री, इन अनदर मार्केट, दैट इज़ नोन एज डंपिंग। सो हर एक कंट्री के पास एक एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ होती है, एंटी डंपिंग होता है कि हम लोग डंपिंग के अगेंस्ट में रहेंगे। WTO भी यही कहता है कि फेयर कंपटीशन हो, तो फेयर कंपटीशन के लिए हम लोग अगेंस्ट में रहते हैं डंपिंग के एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के। क्लियर? देन देयर इज स्पेशल कंसर्न फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ये अगेन दोबारा ये सेम चीज़ आ रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए WTO स्पेशल कंसर्न रखता है, उसके लिए वी हैव लाइक एक्स्ट्रा लीनियंसी प्रोवाइड करिए WTO ने। ऑल्दो WTO क्या कहता है कि MFN रूल लाइक सब कुछ इक्वली, सब कुछ फेयर वे में, सब कुछ ट्रीटमेंट जो होगी सब कुछ इक्वली होगी, बट देयर इज़ अ स्पेशल राइट विच इज़ गिवन टू द ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्पेशल राइट उनको मिले हुए हैं। इट इज़ नोन एज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज़ गिवन बाय द WTO टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसमें ये ट्राई करती है सो डैट कि ये इनको थोड़ा पुश मिले, सो डैट कि ये भी एक बैलेंस वे में बाकी कंट्रीज़ के साथ इक्वली डील कर पाए, बैलेंस कर पाए, ट्रेड कर पाए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। नाउ WTO एंड इंडिया, अब जो मेन आता है कि हाउ इंडिया इज़ रिएक्टिंग टू द WTO, इंडिया का क्या रोल है इसके अंदर। सो इंडिया तब से है इसके साथ जब ये फाउंड हुआ था, इसका ये ओरिजिनल मेंबर है इन 1995, तब से ये है जब 1995 में WTO बना था। द WTO इज़ हाईली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, हाउ as it provides a platform for engaging in global trade negotiations, promoting India's interest, especially in sectors like agriculture के लिए हमें चाहिए, then services के लिए, intellectual properties के लिए, and trade facilitation के लिए। It is highly significant for India कि हम लोग abide करें rules को और हम लोग इससे contact में रहें, और इन सारी चीज़ों में हमें एक larger perspective and push मिले, हम growth कर पाएँ, क्योंकि we have agriculture, we have services, like abundance of services we have in our country, intellectual property भी हमारे पास है, trade facilitation के लिए हमें WTO की बहुत ज़्यादा requirement है अगर global trade, foreign trade अच्छा करना है तो। so that is the importance। अब इंडिया क्या कर रही है, like इंडिया का रोल क्या है इसके अंदर, what is India's role in WTO। so first role is protecting domestic agriculture, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक एग्रीकल्चर। इंडिया क्या एडवोकेट करता है, किस चीज़ के लाइक सपोर्ट पे रहता है, इट्स सपोर्ट
फॉर द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हमारे पास लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल और पॉपुलेशन इज एंगेज्ड, ठीक है। इट सीक्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट सब्सिडीज, लाइक WTO की हेल्प से क्या हम लोग चाहते हैं, इट सीक लाइक इंडिया सीक्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट सब्सिडीज, ताकि हम लोग सब्सिडीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस टू प्रोटेक्ट लोकल फार्मर्स फ्रॉम ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी एंड फॉरेन कंपटीशन, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि हमारे ग्लोबल जितने भी फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी। बाहर की कंट्रीज़ में प्राइस बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है, और फॉरेन कंपटीशन इतना है कि हमारे फार्मर्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए इंडिया पुशेस फॉर दिस। सेकेंड इज़ प्रमोटिंग सर्विस एक्सपोर्ट। अब देखो जो भी मेंबर कंट्रीज़ है वो रूल सजेस्ट भी तो कर रही है ना, लाइक मीटिंग हो रही है प्रॉपर, उसमें रूल्स भी तो सजेस्ट करेगी वो। किसी रूल को अगर उनको लगता है कि अच्छा ये कोई रूल बना है एंड दैट इज़ अगेंस्ट आर इकोनॉमी, दैट इज़ अगेंस्ट आर कंट्री, तो वो उसके अगेंस्ट में खड़ी हो सकती है ना, दे कैन से नो टू दैट स्पेसिफिक रूल, बोल सकती है ना। तो यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है, तो इंडिया वहाँ की मीटिंग्स में अगर जो भी सबमिट होते हैं WTO के, उसमें क्या रोल रहता है इंडिया का, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे इंडिया ट्राई क्या करती है कि हमारा एग्रीकल्चर को डोमेस्टिकली प्रोटेक्शन मिल सके, सेकेंड सर्विस एक्सपोर्ट्स में प्रमोट कर सके, लाइक सर्विसेज एक्सपोर्ट हो सके। तुम्हें मैंने दिखाया था उसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कि सर्विसेज इकलौता ऐसा सेक्टर है हमारा जिसके अंदर पॉजिटिव हमारे पास नेट रहता है, नेट बैलेंस पॉजिटिव रहता है। तो सर्विसेज कितनी सारी है हमारे पास, सर्विस एक्सपोर्ट होंगी, इसके लिए WTO के अंदर भी प्रमोट दिस। हमारे पास लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है ऑफ IT एंड अदर सर्विसेज। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन इन सर्विसेज, सो इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड फॉर ग्रेटर मार्केट एक्सेस। इंडिया ट्राई कर रहा है बहुत टाइम से कि हमें ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिल सके फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल, लाइक स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अंडर द जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स के अंदर। मतलब एक अलग से वो है इनके अंदर, लाइक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सो दैट इज़ अ डिपार्टमेंट फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, particularly through Mode 4 which deals with the movement of professionals across borders. Like in WTO बहुत सारे हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर एक Mode 4 के थ्रू हम लोग मूवमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं प्रोफेशनल अक्रॉस बॉर्डर्स। इसके अंदर वी आर प्रमोटिंग आर स्किल्ड प्रोफेशनल इन द मेन मार्केट, इन द ग्लोबल मार्केट एक्सेस, ताकि अपने लोगों को ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिल सके। सो वी आर प्रमोटिंग दिस। इससे सर्विसेज के लिए हमारा और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, इफ़ यू कैन सी दिस लाइक लेटर ऑन, और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, बल्कि अभी तो हमारा सर्विस पॉजिटिव में चल ही रहा है थ्रू दीज, लाइक यही सारे तो रूल्स होते हैं, यही सारी तो चीज़ें होती हैं जो कि बाद में जाके हमको ग्रेटली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। Now next is fighting for fair intellectual property rules. India support balanced intellectual property protection to ensure that essential items जैसे कि मेडिसिन, हमारी कंट्री अगर कोई मेडिसिन बना रही है तो उसके लिए हमें प्रॉपर लाइक राइट मिले, और उसका ये जो है ये प्रोटेक्शन है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि हमारे यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है, इट रिमेन अफोर्डेबल फॉर इट्स पॉपुलेशन। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे ना, लाइक कोई मेडिसिन अगर हमारी कंट्री ने बनाई है इंडिजिनसली, और हम उसको चाहते हैं कि हम लोग बाकी की मार्केट में उसको थोड़ा एक्सपेंसिव दें, पर अपनी मार्केट में अपनी कंट्री में हमारे पास पॉपुलेशन बहुत इनफ है, हम लोग उनको थोड़ा कम कम चार्जेस पे करके या फ्री मेडिसिन भी इवन वी कैन प्रोवाइड देम। तो ये हम लोग डिमांड करते हैं फाइटिंग फॉर फेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर हमारी कंट्री में कोई चीज़ का ओरिजिन हो रहा है, कोई फाउंड हो रहा है, कोई भी चीज़ डिस्कवर हो रही है, कोई भी चीज़ क्रिएट हो रही है, तो उसका कुछ लाइक पॉजिटिवली एडवांटेज अपनी कंट्री को मिल सके, ठीक है। इट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन नेगोशिएशंस रिगार्डिंग ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एडवोकेटिंग फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ public health related provisions. Of course,
कंट्री के पास, अब तुम खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है, व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर आवर कंट्री, तो वो तो तभी करेगी ना जब अपने लोगों के लिए वो पब्लिक हेल्थ लाइक हेल्थ केयर वाइज में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हो। और अगर हमारी कंट्री में कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसी चीज़ों से मेडिसिन बन रही है या कोई वैक्सीन बन रही है, उसमें अपनी जनता को, अपने सिटीजन्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो उसमें तो तुम्हें थोड़ा सा बायस होना पड़ेगा ना उसके लिए, लेकिन तुम्हें पुश करना पड़ेगा इन WTO, ठीक है, वहाँ पे यू कांट ट्रीट देम इक्वली। देन सेफ गार्डिंग फूड सिक्योरिटी, अपने कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करना। सो वी हैव टू थिंग्स हियर, वी हैव मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड PDS लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यू ऑल नो कि राशन मिलता है ना लोगों को, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो फार्मर्स के लिए होता है। दीज प्रोग्राम्स प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट। अब ये है अपनी कंट्री के अंदर, what it does essential support to low income populations and farmers. this is for generally किसके लिए होता है, लो इनकम, लो डिस्पोजेबल इनकम जिन लोगों की है, लाइक जो कि BPR में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, BPL के अंदर आते हैं, उनके लिए, प्लस जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए MSP प्रोवाइड होता है, तो हम लोग उनके लिए कर रहे हैं। तो इंडिया आर्ग्यूज फॉर एक्सेप्शंस, इंडिया वॉन्ट्स कि इसमें हमें एक्सेप्शंस मिले, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले इसके अंदर, और हमें उस प्रिंसिपल के अंदर ना लाया जाए जो कि बाकी सबके लिए है। समझ रहे हो इस चीज़ को? एंड स्पेशल ट्रीटमेंट अंडर WTO रूल्स विच लिमिट। अब WTO रूल्स में क्या है, हमारे पास एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ ना लिमिटेड है कि हम लोग ज़्यादा सब्सिडीज़ फार्मर्स को नहीं दे सकते, एग्रीकल्चरल में सब्सिडीज ज़्यादा नहीं दे सकते। तो टू सेफ गार्ड दिस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, इंडिया आर्ग्यू करती है, इंडिया एडवोकेट करती है और प्रमोट करती है कि हमें इसमें एक्सेप्शन मिल सके, ठीक है। देन प्रमोटिंग डेवलपमेंट इंटरेस्ट, अब ये अगेन फिर वही आ गया, इंडिया अलाइंस विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। अब इंडिया दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मिल करके, कोलैब करके पुश कर सकती है फॉर अ फेयर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। अब इसके अंदर आ जाता है जैसे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है हमारे पास क्लॉज है, अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया कि वी हैव अ स्पेशल क्लॉज इन WTO, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इट गिव्स डेवलपिंग कंट्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग WTO कमिटमेंट्स, कि इससे हम थोड़ा सा डिफरेंटली चल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट इंटरेस्ट, ताकि अपनी कंट्री में और डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे इट इज़ बेसिकली यूजिंग दिस राइट, ठीक है, इंडिया स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट को यूज़ कर रही है। दैट इज़ इंडियाज रोल इन लार्जर पर्सपेक्टिव इन WTO। ये अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स एंड हाउ इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग विद WTO ऑल्सो। तो इंडिया को और क्या करना चाहिए फॉर प्रोटेक्टिंग आर इकोनॉमी, प्रोटेक्टिंग आर बिजनेसेस। इसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा, WTO इज़ द लार्जर पर्सपेक्टिव, फॉरेन ट्रेड को ट्रेड करना। नाउ वी विल मूव टू द ग्लोबल। अब ये हमारा एक ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ एन एसोसिएशन जो कि ब्रिक्स लाइक अलग से बनाया गया है, ठीक है। वो तो पहले बना था, वो US लाइक वहाँ पे मेड है, जिनेवा में है उसका जो सेंटर है, जो मेन सेंटर है, दैट इज़ इन जिनेवा। अब ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इज़ एन एसोसिएशन जिसमें इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इट। अब इंडिया का रोल ब्रिक्स के अंदर क्या है, अब ब्रिक्स समिट अभी चल भी रही है, मतलब अभी चली थी, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो ब्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ ब्रिक्स, और इसमें इंडिया का मेजर रोल क्या है। सो ब्रिक्स इज़ एन एक्रोनिम फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इकोनॉमीज़। 5 मेजर इकोनॉमीज़ ने मिल करके ब्रिक्स बनाया था, और वो 5 मेजर इकोनॉमीज़ कौन सी थी, तो इट वाज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो लाइक फॉर्मरली सबसे पहले तो वैसे सिर्फ 4 ही कंट्रीज़ थी। इट वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड एज ब्रिक ओनली। साउथ अफ्रीका ने लेटरली ज्वाइन किया था इन 2010। बनाई कब था, इट वाज एस्टेब्लिश इन 2009, बट विद इन नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, तब ये नाम बन के क्या हो गया, ब्रिक्स बन गया।
द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक, अभी जो कॉन्सेप्ट है ब्रिक का, इट वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नाइल in 2001 to refer to emerging markets that were expected to become major global economic powers. Like उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हमारी कुछ पूरे वर्ल्ड में कुछ इमर्जिंग मार्केट्स है, कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं दैट कैन टेक अ लार्जर शेयर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, जो कि बाद में जाके मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स बन सकती हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसी इकोनॉमिस्ट ने दिया हमको. सो ब्रिक्स कंट्रीज रिप्रेजेंट सम ऑफ द वर्ल्ड्स, अब तुम खुद देख लो ये सारे कंट्रीज जो भी हैं, दीज आर दी वेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ग्लोबली मेजर इकोनॉमीज़ हैं ये सारी की सारी, इनके पास बहुत पावरफुल कंट्रीज़ भी हैं. सो ब्रिक कंट्रीज रिप्रेजेंट सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये सारी कंट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग ही हैं इकोनॉमीज़ विद अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन. अब इन सारी कंट्रीज़ का बहुत लार्जर इम्पैक्ट में इन्फ्लुएंस रहता है और ग्लोबल ट्रेड किस किस में, लाइक ग्लोबल अफेयर्स में है, ट्रेड के अंदर है, वी हैव इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, लाइक इन सारी लाइक चीज़ों के अंदर इन सारी इकोनॉमीज़ का बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है. The aim of this alliance is to challenge the economic and political monopoly of the West. Very important to note कि इसका एम क्या था. इसका एम ये था कि जो भी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बनाई गई थी, कौन सी हैं पता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मेजरली क्या करती है, मेजरली कंट्रोल करती है फाइनेंस को. इफ़ यू वांट द फाइनेंस, इफ़ यू वांट द फंड्स, तुम किसके पास जाओगे? IMF था हमारे पास, वर्ल्ड बैंक था. बट अगर हमें इनके पास नहीं जाना, यही सारा कुछ डोमिनेट करती रहेंगी, तो फिर लाइक बाकी कंट्रीज़ कैसे लाइक सर्वाइव कैसे करेंगी? तो उनकी मोनोपोली को रिमूव करने के लिए, उनकी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मोनोपोली को रिमूव करने के लिए वी हैव मेड दिस. लाइक इनका टारगेट ही यही था, इनका एम ही यही था इस अलायंस का. ठीक है, और ये तुम देख भी रहे होगे कोई भी वेस्टर्न लेड, मतलब वेस्टर्न तो है, ब्राज़ील है, तो ये वेस्टर्न तो है, लेकिन इन कंट्रीज़ ने सोचा कि वेस्टर्न लेड जितनी भी वो है इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबसे हटके और हमारे पास कुछ रहे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमीज़ को और प्रॉपर ग्रोथ मिले. ठीक है, जो कि बायसनेस कई बार इनमें हो जाती है. सो दे वर बेसिकली अगेंस्ट और to reduce the political monopoly of Western led institutions. So in 2023, अभी पिछले साल की बात है जिसके अंदर 15th हमारा ब्रिक्स समिट हुआ था, और अभी कौन सा चल रहा है, दैट इज 16th ब्रिक्स समिट जो कि हुआ है 22 to 24 अक्टूबर में, अभी हुआ है ना. तो ये 16th ब्रिक्स समिट हुआ है, कहाँ पे हुआ है ये हुआ है कजान, रशिया के अंदर. कजान रशिया के अंदर हुआ है इस साल. ठीक है, तो लास्ट ईयर समिट हुआ था, इट वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. ये लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में हुआ. 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था फॉर टू जॉइन द अलायंस. 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया टू जॉइन द अलायंस. दे वर, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? ईरान थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथियोपिया. इनको इनवाइट किया गया था सो दैट कि दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस, ब्रिक्स का पार्ट बन सके. सो लेटर ऑन लाइक ये जब हुआ था 2023 के अंदर, उसके बाद 1 जनवरी 2024 में ही इनमें से कितनी थी कंट्रीज़? 6 कंट्रीज़ थी. 4 कंट्रीज़ ने इसका पार्ट बनने को लाइक अलाउ कर दिया और दे बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिक्स. और वो कौन सी कंट्रीज़ थी? लाइक एक्सक्लूडिंग द ईरान नहीं बनी इसका पार्ट, एंड अर्जेंटीना ऑल्सो. ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अर्जेंटीना और ईरान ने मना कर दिया कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे. सो लेटर ऑन अभी हमारे पास जो 9 कंट्रीज़ अवेलेबल हैं इन ब्रिक्स, और अभी जो समिट हुआ है उसके अंदर 9 कंट्रीज़ ही आई हैं, 9 कंट्रीज़ के मेंबर्स आए हैं. अभी मैं उसकी पिक दिखाती हूँ. सो ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान इज़ देयर,
Ethiopia is there, United Arab Emirates is also there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, कौन सा नहीं है इसके अंदर? Saudi Arabia is not there. Yes, Saudi Arabia is not there. Sorry, Iran is there, but Saudi Arabia is not there. Saudi Arabia and Argentina ने मना कर दिया और बाकी सारी कंट्रीज इसका पार्ट बन गई इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024, यानी कि इसी साल से. सो अब इसको कर दिया एक्सपैंड इन 2023. पिछले साल ब्रिक्स को एक्सपैंड कर दिया. ब्रिक्स प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करता है उसी टाइम पे, लाइक पिछले साल का डेटा है ये. इट रिप्रेजेंट 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. लाइक ब्रिक्स के अंदर 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है. 30% ऑफ वर्ल्ड्स टेरिटरी, लाइक एरिया वाइज वर्ल्ड्स की टेरिटरी में 30% है इसके पास एरिया, एंड 23% ऑफ ग्लोबल GDP एंड अराउंड 18% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. लाइक कितना डोमिनेंस है ब्रिक्स का, ये अपने डेटा से ये बताना चाह रहे थे कि 42% तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया, 30% ऑफ वर्ल्ड टेरिटरी, 23% ऑफ ग्लोबल GDP एंड 18% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. ये एक लाइक अकेले ये लोग मैनेज करते हैं, संभालते हैं. सो यू कैन सी कि अगर इनका डोमिनेंस और मेजर होता चला जाए, अगर ये अलायंस बना के कोई ऐसी डील कर ले जिससे कि बाकी कंट्रीज़ को लॉस हो, सो सोचो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा. तो अलायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू वर्क कॉपरेटली. सो दिस ग्रुप सेट प्रायोरिटीज़. अब इनकी कुछ प्रायोरिटीज़ रही हैं एंड हैज़ डिस्कशंस वंस एवरी ईयर. हर साल इनके डिस्कशंस होते हैं, हर साल इनकी प्रायोरिटी सेट होती है कि अब इस साल कौन सी प्रायोरिटी हमारी रहेगी, किस चीज़ के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे. ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट विच मेंबर्स टेक टर्न्स होस्टिंग. हर साल कोई ना कोई कंट्री जो है वो होस्ट करते हैं ब्रिक्स समिट को. जैसे इस साल कजान रशिया में हुआ है, लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में हुआ. So this is the latest photo of BRICS 2024. इसके अंदर you can see 9 members are there और ये सारे 9 लीडिंग मेंबर्स हैं सारी कंट्रीज़ के जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो देयर. उन्होंने भी बहुत सारे डिस्कशंस रखे, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एक्सेट्रा, लाइक प्रायोरिटी समथिंग, लाइक ऑल डिस्कशंस वर हेल्ड इन ब्रिक्स समिट. सो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स? इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रमोट मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस. अगेन वही जो भी मैंने बताया कि वर्ल्ड वेस्टर्न लेड जो डोमिनेंस है इंस्टीट्यूशंस की, फॉर एग्जांपल लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उसको रिड्यूस करना है. उसकी पावर, उसका इन्फ्लुएंस, उसका डोमिनेंस को रिड्यूस करना है. तो ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स कंट्री इसको एडवोकेट करते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने जिसके अंदर लाइक बाकी कंट्रीज़ का भी कोई ना कोई बड़ा रोल रहे, ना कि सिर्फ किसका डोमिनेंस रहे, वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस का ही रोल रहे. देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड. इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे हो? ब्रिक्स प्रमोट्स कोलैबोरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज इन एरिया सच एज ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट. ब्रिक क्या प्रमोट करता है? कोलैबोरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज इन एरिया सच एज ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम. अगेन कि लाइक वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम हमारे पास है, पर वहाँ से हम लोग क्यों फाइनेंस के लिए जाएं? हम लोग हमारे पास लाइक क्यों नहीं ऑप्शन अवेलेबल है हमारी कंट्रीज़ के लिए, अपने अलायंसेस के लिए? तो ब्रिक यहाँ पे प्रमोट करते हैं कि कोलैबोरेशन हो अमंग मेंबर कंट्रीज़, लाइक हम लोग आपस में कुछ लाइक डील करें, अपना एरिया हो हमारे पास ट्रेड के लिए, फाइनेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए. वी कैन डील विद ईच अदर कंट्री और वहाँ पे हम लोग डिपेंडेंस जो कि अभी बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम में, उसको रिड्यूस कर दें. ठीक है. देन डेवलपमेंट कोऑपरेशन. डेवलपमेंट अगेन ये सारी कंट्रीज़ आपस में एक डील करती है कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो कोऑपरेटिवली होगा. किन किन चीज़ों के ऊपर? लाइक दे हैव सम सेट टारगेट. द ग्रुप फोकस इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. किस किस में? फर्स्ट इज पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर,
लाइक पॉवर्टी को रिड्यूस करना इनका एक मेन टारगेट है। एंड सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, लाइक आपस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सपोर्ट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन सके इन सारी कंट्रीज़ का आपस में कोऑपरेटिवली। लेकिन और इसमें उनको हेल्प करनी पड़ेगी एक दूसरे की, वो डील करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है हम तुम्हें फाइनेंस दे देंगे विद लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कोऑपरेटिवली हो रही है इन दिस अलायंस। देन स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब जैसे कि मैंने बताया IMF एंड वर्ल्ड बैंक वेस्टर्न लेड है, तो ब्रिक्स ने क्या बनाया, तो ब्रिक्स ने बनाया है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो सेंटर है डैट इज़ इन शंघाई, चाइना के अंदर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज फॉर्म्ड अंडर ब्रिक्स एसोसिएशन में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। जैसे कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक काम करता है ना, सिमिलरली NDB भी ऐसे ही परफॉर्म करता है। पर ये लोन किसको देगा, लाइक ये फाइनेंस किसको देगा, ये फाइनेंस देगा ब्रिक्स कंट्रीज़ को। तो वो लोग आपस में, और ये NDB ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर हमें फाइनेंस देता है सो दैट कि हमारी कंट्री में लाइक रोड बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो सके। हम लोग NDB के पास जा सकते हैं टू कलेक्ट और टू फॉर द फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं हम लोग इनके पास जा सकते हैं। तो ब्रिक्स के द्वारा ही NDB बना हुआ है। इम्पॉर्टेंटली इसको नोट कर लेना NDB को। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्रिक्स के अंडर तो बनाई गई है। देन इंडिया एंड ब्रिक्स, अब इंडिया का क्या रोल है इसके अंदर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। India has promoted trade and investment among BRICS countries, focusing on sectors like technology, pharmaceuticals, agriculture and textile. India advocates for greater trade liberalization and reduced trade barriers within BRICS. Again, जो कि मैंने बोला था WTO के अंदर अगर एक्सेप्शन है कि तुम कर सकते हो आपस में फ्री ट्रेड वगैरह जो भी है, लेकिन वो विद इन दैट ग्रुप ही होना चाहिए। तो वो हो रहा है कि हम लोग उस चीज़ को मान रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, हम लोग आपस में ट्रेड लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, पर हम अपने ग्रुप के अंदर कर रहे हैं। हम लोग गुड्स के ऊपर जितना भी ट्रेड करेंगे, लाइक सर्विसेज के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो विद इन द ग्रुप करेंगे, विद इन द अलायंस करेंगे। और इसके अंदर इंडिया ने बहुत प्रमोट किया अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सेक्टर्स देख लेना, टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल वगैरह सब के ऊपर, ठीक है। देन NDB, अब इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द NDB की फॉर्मेशन में, NDB की फाइनेंस में इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द NDB विच फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये NDB क्या करता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, ये फंड प्रोवाइड करता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए इन ब्रिक्स एंड अदर डेवलपिंग नेशंस ऑल्सो। अदर डेवलपिंग नेशंस को भी ये प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड सिग्निफिकेंट NDB फंडिंग। अब इंडिया को क्या मिला, इंडिया को NDB की तरफ से फंड मिला है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभी मैंने बोला भी था, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें इंडिया फाइनेंस के लिए जाता है, फाइनेंस यानी कि लोन वगैरह कुछ लेता है, तो उसके लिए इंडिया NDB से लोन ले चुका है। IMF से तो लेता ही है, वर्ल्ड बैंक से भी लेता है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो ले चुका है, मेट्रो रेल सिस्टम्स के लिए लोन ले चुका है विच सपोर्ट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स। तो इंडिया का क्या रोल है, इंडिया ने NDB के अंदर वो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, लेकिन उससे फाइनेंस भी उसको मिल रहा है, लाइक सपोर्ट मिल रहा है इंडिया को अपनी कंट्री को और सस्टेनेबल बनाने के लिए। Then digital transformation. India has positioned itself as a leader in digital transformation. ये तो like हम लोगों को पता ही है कि digital transformation में India became a leader of that. So emphasizing projects like Digital India and promoting financial inclusion through technology. So ये सारी चीज़ें इंडिया ने की है. India has encouraged other BRICS members also
to adopt digital solutions to improve financial access and governance. तो इंडिया यहाँ पे खुद तो डिजिटलाइज हो रहा है, साथ में वो पुश करता है, लाइक सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है बाकी ब्रिक्स मेंबर्स को भी टू अडॉप्ट डिजिटल सॉल्यूशन सो डैट कि उनका भी फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल एक्सेस इंक्रीज हो सके, फाइनेंशियल गवर्नेंस भी इंक्रीज हो सके. और आज के टाइम पे डिजिटली ट्रांसफॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लाइक यूजुअली वी डील ट्रेड इन डॉलर्स, है ना, डॉलर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं. अब ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में क्या है, लाइक इन ब्रिक्स कंट्रीज, लाइक ब्रिक्स के अंदर अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वी कैन डू द ट्रेड विद द लोकल करेंसीज ऑफ दैट कंट्री. हम यहाँ पे डॉलर्स के साथ ना करें तो भी चलेगा. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी अलाउिंग कंट्रीज टू ट्रेड इन द लोकल करेंसीज. इससे होगा क्या, हमारा जो पूरा लाइक वी आर फुली एंड होली डिपेंडेंट ऑन डॉलर्स. यूएस डॉलर के ऊपर हम लोग पूरा डिपेंडेंट है फॉर आर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम. ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम जो है पर उसको रिड्यूस कराना चाहता है. जो हम लोग पूरा रिलायंट है ना अभी यूएस डॉलर के ऊपर, उसको वो रिड्यूस कराना चाहता है. दिस अलाइंस विद इंडियाज गोल टू स्ट्रेंथन इट्स करेंसी. इससे होगा क्या, हमारी करेंसी स्ट्रेंथन होगी एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम. ये वर्ड तुम्हें हर बार दिख जाएगा. लाइक अगर ब्रिक का एक एम जो है वो कंटिन्यूसली तुमने देखा होगा वो चल रहा है, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को बना के रख, लाइक मेंटेनेंस पूरी है इनकी कि हमको कैसे वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस को अवॉइड करना है और अपनी कंट्री को कैसे ग्रोथ करवानी है. सो दिस इज़ ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम लोग डॉलर्स में डील ना करके अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं. सो दिस वाज द इंडियाज़ रोल इन ब्रिक्स एसोसिएशन. सो दैट वाज ऑल द ब्रिक्स एंड WTO. इसके बाद एक और आता है हमारे पास इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन, दैट इज़ बिम्स्टेक. बिम्स्टेक पहले इसका नाम कंट्रीज़ के ऊपर बेस्ड था, बट अब इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. दैट इज़ द लेटेस्ट नेम ऑफ बिम्स्टेक. पहले इसका नाम किन के ऊपर था, कंट्रीज़ के ऊपर था, बट अब नहीं है. सो दीज आर द कंट्रीज़ इन दिस. बिम्स्टेक है क्या, अब इसके नाम में ही ना सो इसके नाम में ही ना बिम्स्टेक इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट्स. इसके अंदर 7 मेंबर स्टेट्स आते हैं. फर्स्ट इज़ बांग्लादेश, देन भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. So there are 7 member states in in BIMSTEC. अब ये जो 7 member states हैं, अगर तुम लोगों ने इसमें थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं दैट इज़ अराउंड द बे ऑफ बंगाल रीजन के अराउंड ही ये सारी कंट्रीज़. और ये साउथ ईस्ट एशियन की तरफ आता है, नॉट द साउथ एशियन बट द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़. ये सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं. So it was formed in 1997 with the aim of promoting multifaceted technical and economic cooperation among the countries of the Bay of Bengal region. So basically it was formed कि इनका aim क्या था, to promote the multifaceted, जितने अभी जो ये लोग फेस कर रहे थे, जो टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इकोनॉमिक कॉपरेशन चाहते थे अराउंड द बे ऑफ बंगाल रीजन. सो दिस वॉज द रीज़न टू फॉर्म दिस ग्रुप BIMSTEC. The region covered by BIMSTEC is home to around 1.5 billion people. इस पूरे एरिया के अराउंड 1.5 बिलियन पीपल लाइक उनका पूरा वो लोग रहते हैं विद अ कंबाइंड GDP ऑफ 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स. इन सब पूरे ग्रुप का अलायंस का कंबाइंड GDP कितना है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स. और कितने लोग हैं, इस पॉपुलेशन कितनी है, 1.5 बिलियन पीपल. और
कंट्रीज 7 मेंबर कंट्रीज आर देयर. ये सारी कंट्रीज उसको लिख लो. हाँ, तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो ये बे ऑफ बंगाल हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन. बे ऑफ बंगाल रीजन के अराउंड हमारे पास इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका. So these are the 7 member countries in BIMSTEC group. Population इसकी वही 1.5 billion people, approx 22% of the world's population. पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% सिर्फ इसके अंदर आ रहा है. और ये तो खैर पुराना डेटा है. इसकी जगह पे $3.8 ट्रिलियन इज द कंबाइंड करंट कंबाइंड GDP इज ऑफ BIMSTEC. ठीक है. सो दिस इज द मैप ऑफ BIMSTEC. सो लेट्स सी द ओरिजिन. इसका ओरिजिन कैसे हुआ? So the sub-regional organization was established in 1997 with the adoption of Bangkok Declaration. So starting ये हुई थी 1997 से with the adoption of the Bangkok Declaration, initially consisting of 4 member states. Only 4 member states were there, known as BIST-EC. Like BIST was the 4 member countries and EC was the economic cooperation. And who were the 4 member countries? Bangladesh. Like originally only 4 member countries are there, Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand. ये था पूरा नाम, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इकोनॉमिकली कोऑपरेट करना ये इनका टारगेट था. इनके नाम में ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन आ रहा है. देन लेटर ऑन 1997 में इट वाज रीनेम्ड एज BIMSTEC आफ्टर म्यांमार ज्वाइन. तो म्यांमार ने ज्वाइन किया, उसके बाद BIM को इंट्रोड्यूस कर दिया उस 4 मेंबर नेशन में. देन आफ्टर दैट एडमिशन ऑफ नेपाल एंड भूटान इन 2004 में आया हमारे पास नेपाल एंड भूटान. लेड टू अनदर नेम चेंज टू द, अब तब से लाइक 2004 से हमारे पास जो नाम है BIMSTEC का वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. दिस इज द ओरिजिनल नेम which was named in 2004 after Nepal and Bhutan joined this group. ठीक है. Then there are some key features of BIMSTEC. What are the key features of this? International recognition. So internationally इसको recognize किया जाता है. ऐसा नहीं कि कोई भी like locally कोई group है ऐसे ही बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है. It is an internationally recognized association. BIMSTEC gains official standing as a legal entity. First of all, it's a legal organization, allowing it to interact directly with other international organizations on matters of diplomacy and cooperation. Like international organization, कोई भी international organization, for example IMF, World Bank. तो ये सारे जो BIMSTEC है या फिर UN, United Nations ले लो, WHO ले लो, जितनी भी ये हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ हम बात कर सकते हैं ऑन मैटर्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि हमको लीगल एंटिटी मिली हुई है, लाइक BIMSTEC को मिली हुई है. सो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है इसको. देन शेयर्ड गोल्स. इन सारी कंट्री का एक शेयर्ड गोल है. लाइक इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द चार्टर आउटलाइंस BIMSTEC's ऑब्जेक्टिव्स विच फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग मेंबर स्टेट्स. सो यू नो कि जब भी हम लोग एसोसिएशन बनाते हैं तो वो इस पर्सपेक्टिव से या इस अप्रोच से बनाते हैं कि हम लोग फ्रेंडली होकर काम करेंगे, हम लोग एक दूसरी कंट्री के साथ यू नो बायस नहीं होंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे. अगर हमारे बहुत ही अनफ्रेंडली रिलेशंस है विद अदर कंट्रीज तो उसको रिड्यूस करेंगे. वी विल मेक द फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर मेंबर स्टेट्स. तो ये इनका लाइक शेयर्ड गोल था स्टार्टिंग में. एंड एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, कि हमारा जो एरिया है, जो रीजन है, उसमें हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे एंड सोशली प्रोग्रेस करेंगे. दैट वाज द शेयर्ड गोल ऑफ BIMSTEC's ऑब्जेक्टिव. स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक क्लियर फ्रेमवर्क है BIMSTEC का ऑपरेशन का.
आउटलाइनिंग रेगुलर मीटिंग, इसकी भी रेगुलर मीटिंग्स होती है, जैसे कि अभी ब्रिक्स समिट में दिखाया मैंने तुम्हें, रेगुलर मीटिंग्स एट द समिट, मिनिस्टीरियल एंड सीनियर ऑफिशियल लेवल, लाइक हर एक लेवल पे अपनी अपनी मीटिंग होती है। समिट होता है इसका मिनिस्टीरियल लेवल पे होती है, सीनियर ऑफिशियल लेवल्स पे भी मीटिंग्स होती है डिफरेंटली। सो इसका भी एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। देन एक्सपैंडिंग मेंबरशिप, अब हर एक एसोसिएशन चाहता है कि उसके ग्रुप में और अलायंस लाइक और ग्रुप्स ऐड हो जाएं और कंट्रीज ऐड अप हों, तो इसका भी ये चाहता है एक्सपैंड करना मेंबरशिप। द चार्टर पेव्स द वे फॉर फ्यूचर ग्रोथ बाय अलाउिंग न्यू कंट्रीज टू जॉइन बिम्स्टेक, सो दे ऑल्सो इन्वाइट अदर कंट्रीज टू जॉइन देयर बिम्स्टेक ग्रुप एंड फॉर अदर नेशंस टू पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर्स ऑल्सो। ऑब्जर्वर से भी कंट्रीज जो हैं वो पार्ट ले सकती हैं फॉर एनी एसोसिएशन, तो वो इनवाइट करते हैं कि या तो ज्वाइन करो या फिर ऑब्जर्वर की तरह तुम लाइक पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन टू 7। अब पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक कंट्री को अपना अपना एक सेक्टर दे दिया जिसके ऊपर वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे एंड उसके ऊपर वो लाइक डिफरेंटली अपने अपने सेक्टर्स के ऊपर वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ईच मेंबर स्टेट विल सर्व एज अ लीडर, लाइक वो लीड करेगा इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। कैसे, अब जैसे बांग्लादेश को काम दिया है ट्रेड का, बांग्लादेश इज अ लीडर फॉर द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको लीडर बनाया है, लाइक बांग्लादेश इस चीज़ को इन चीज़ों के ऊपर लीड करेगा। वट अबाउट भूटान, भूटान इन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर इज़ द लीडर। इंडिया के पास है सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एनर्जी का है एंड सिक्योरिटी वाइज इंडिया इज़ द लीडर। म्यांमार को काम दिया है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, नेपाल इन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, श्रीलंका इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड थाईलैंड इन कनेक्टिविटी। सो हर एक कंट्री को अपना अपना रोल बता देना कि रोल दे दिया है, यू कैन अब उसी रोल के अकॉर्डिंग दे कैन वर्क ऑन दैट, और उसके लिए वो मतलब ट्राई करेंगे कि हम इस चीज़ में लाइक ग्रोथ करें। पता है ये बहुत अच्छा होता है कि हम हर एक कंट्री को अपना अपना डिपार्टमेंट दे देना सो दैट दे कैन वर्क वेरी एफिशिएंटली वर्क हो पाए इसके अंदर। और हर एक कंट्री फिर ट्राई भी करते हैं कि ठीक है इस चीज़ का हम लोग डिपार्टमेंट लाइक ले लेंगे एंड वी कैन लीड इन दैट सेक्टर। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये बिम्स्टेक के अंदर, मुझे अच्छी लगी। इससे मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस कम होते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया, वाई बिम्स्टेक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ में, हर एक टॉपिक में इंडिया पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के लिए कोई भी एसोसिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को करना है। देन इसके अंदर अलाइंड विद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इफ़ यू रिमेंबर मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जिसके अंदर इंडिया विल शिफ्ट फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लाइक वो मतलब सिर्फ देखेगा नहीं, वो काम भी उस तरीके से करेगा, टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अलाइन करता है इंडिया का जो अपना लाइक पर्सनल गोल है, इंडिया की कंट्री का पर्सनल गोल है, इसके साथ वो अलाइन कराता है। सो बिम्स्टेक इज़ मोर अलाइन विद इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की खुद की पॉलिसी के अंदर है ये चीज़, तो इससे काफ़ी अलाइन करता है। So it helps India gain trade and security prominence in the Indian Ocean region and the Indo-Pacific. India के पास like India gain trade and security prominence in the Indian Ocean region, इसके अंदर इंडिया के पास ट्रेड करने का like सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ का गेन है, उसके पास एडवांटेज है इस चीज़ की। एंड इंडो पैसिफिक ऑल्सो ऑल्टरनेटिव टू सार्क, अभी मैंने तुम्हें बताया बिम्स्टेक इज़ अ साउथ ईस्ट एशियन पॉलिसी, साउथ ईस्ट के लिए हमारे पास पूरा एक प्रॉपर ग्रुप है। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये साउथ एशिया के लिए है, लाइक इसमें जो कंट्रीज आती है वो साउथ एशिया के लिए है, बट ये किसके लिए थी, साउथ ईस्ट के लिए थी। तो ऑल्टरनेटिव टू सार्क, सार्क के ऑल्टरनेट में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास बिम्स्टेक है। सो फॉलोइंग इंडियाज एफर्ट्स टू आइसोलेट पाकिस्तान, जो कि कब हुआ था 2016 में, उरी अटैक्स के बाद हमने सार्क के अंदर
पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ट्राई किया था। इन दैट समिट, ये समिट जो हुई थी सार्क के अंदर। तो अब इसके अलावा बिम्स्टेक हैज़ इमर्ज एज अ प्रेफरेबल रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर इंडिया अपना जो भी रिस्पॉन्स है, अपना जो भी लाइक एडवाइस है या कुछ अगर वो चीज़ करना चाहती है तो वो कर सकती है। लाइक वी हैव द ऑप्शन, वी हैव द ऑल्टरनेटिव टू सार्क ऑल्सो। सार्क के अलावा हमारे पास रीजनल ऑल्टरनेटिव क्या है, तो वी हैव बिम्स्टेक, जहाँ पे हम अपना रोल, अपना लाइक कोई भी ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देन एज अ काउंटर टू चाइना, अब इस पूरे बिम्स्टेक के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा चाइना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सार्क के अंदर भी क्या है, साउथ एशियन है एसोसिएशन। अब हमारे पास बिम्स्टेक एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हम काउंटर कर सकते हैं चाइना को विद द हेल्प ऑफ द अलायंस ऑफ ऑल द कंट्रीज़। एज चाइना एक्सपैंड इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तुम लोगों ने पक्का पढ़ा होगा कि चाइना एक्सपैंड कर रहा है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, लाइक टेरिटरी वो ऑक्यूपाई करने की उसमें है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि जितना टेरिटरी वो लोग ऑक्यूपाई कर सके वो कर रहे हैं अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री के साथ, तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में दे आर ट्राइंग दिस फॉर लाइक मैनी ईयर्स। So India views this growing presence as a challenge to its regional dominance। तो ये जो रीजन हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन, इसमें इंडिया यहाँ पे इसको एज अ चैलेंज फेस करता है, एज अ चैलेंज देखता है, जिसमें इन पूरे ग्रुप को लाइक यूनानिमसली और बिल्कुल लाइक यूनिटी वाइज साथ रहकर कोऑपरेट करके इस चीज़ के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ बिम्स्टेक, कोऑपरेशन, जितनी भी अलायंसेस होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। देन टू काउंटर दिस इंडिया इज टेकिंग अ लीडिंग रोल इन बिम्स्टेक। अब इसको चैलेंज करने के लिए इंडिया लीड रोल ले रहा है इन बिम्स्टेक, प्रमोटिंग इट एज एन ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो यू कैन सी कि what can we do beside trade, like beside trade हम लोग और क्या चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं एज अ कंट्री। और वैसे भी तुम लोगों ने देखा होगा भी पीछे इंडिया को रोल किसका मिला हुआ है, सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के अंदर यही सब चीज़ें तो आती है कि वो बिल्कुल लाइक चेक कर रहा है कि कौन ऐसा कंट्री है जो कि इनको चैलेंज दे रही है, कौन इनको डोमिनेट करना चाह रही है, ठीक है। सो इंडिया इज़ द लीडिंग रोल, और जो कि वो ट्राई भी कर रहा है कि इसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ कर पाएँ। देन वी हैव प्रमोशन ऑफ इंटैंजिबल कल्चर। अब ये अच्छा पॉइंट है, ये अभी ना नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि बिहार में है, इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि वी विल लाइक ओपन द रिसर्च ऑन आर्ट, कल्चर एंड अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द बे ऑफ बंगाल। लाइक इंटैंजिबल कल्चर को भी यहाँ पे लेके आने का प्रमोशन किया है इंडिया ने। So it can bring new insight and research in intangible heritage in that region, like Bay of Bengal region में intangible culture कैसा है, art and craft, ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ न्यू करने की ट्राई करी है in India। So this is what India is doing for the BIMSTEC group। Then platform for regional cooperation, it brings together countries from South Asia and Southeast Asia, providing a platform for enhanced regional cooperation। प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन, लाइक ये जो बिम्स्टेक है ये कंट्रीज़ को, सॉरी ये पता क्या करता है ये, हाँ, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक लिंक बनाता है। जो बिम्स्टेक है इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एनहांस्ड रीजनल कोऑपरेशन, सो दैट कि जितना एनहांस्ड रीजनल कोऑपरेशन हो सके दे विल ट्राई फॉर दैट। इट हैज़ promoted deepening cooperation in security matters and management of humanitarian assistance and disaster relief program, जो कि चलाए भी गए थे। इसमें सारी कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक ग्रुप टुगेदरली लाइक वर्क करती है इन द सिक्योरिटी मैटर्स, ठीक है। सो दीज वर द इनिशिएटिव्स विच वर टेकन बाय द इंडिया। ये इंडिया का रोल था जितना भी था सारा, और पीछे जितना भी मैंने चीज़ें कराई लाइक WTO की एंड अबाउट द ब्रिक्स ऑल्सो, उसमें मेजरली जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी दैट इज़
द इंडियाज़ रोल इन दीज एसोसिएशन. इंडिया WTO में क्या उसका लाइक अप्रोच क्या है, ब्रिक्स के अंदर क्या है, बिम्स्टेक में व्हाट इज़ इंडिया डूइंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड इन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, जिनके ऊपर तुम लोगों को फोकस करना है. सो दैट इज़ ऑल इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर टुडे. Any questions? Pause this.